ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੈ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਏ, ਦਰਾਂ ਭੀਤਰ ਦਰ ਕਵਨ ਲਹੇ, ਜਿਸ ਦਰ ਕਾਰਣ ਫਿਰਾਂ ਉਦਾਸੀ, ਸੋ ਦਰ ਕੋਈ ਆਏ ਕਹੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਦਾਸ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤੇ ਆਗੇ, ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੈ ਨਿਰਾਸ, ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਵਲ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਬਿਆ ਦਬਿਆ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਬੋਝ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ 10 ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦ ਆਸਣ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਸਣ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਜਿਤਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਕਿਉਂ? ਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੂੰਕਿ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਸਨ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੈ ਨਿਰਾਸ, ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਢੰਗ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸਨਿਆਸਾ, ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਉਜਾੜ ਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਮਝ। ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ, ਬਨ ਜੈਸਾ ਹੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲੈ। ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ? ਸਿਰਫ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜਨਾ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲੈ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਘਰ ਉਜਾੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ ਉਦਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 3 ਸਾਧਨ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 3 ਕਾਰਨ ਟੋਟਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਦੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਹੋ। ਬੋਲ ਉੱਚੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹਦੀ ਸਰੋਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਪੀ ਹੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਨ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ। ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪੀੜ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨ।
सतगुर दी बाणी दा बाण ऐसा लग्या, तीर ऐसा लग्या, शब्द मन नूं छोएगा, मन नूं चोट करेगा। जितने चिर तक शब्द ने मन नूं चोट नहीं की थी, समझ लो इसने सुनिया ही नहीं है। मन स्रोता बने, जबान वक्ता बने। जबान आखे वाहेगुरु वाहेगुरु, ये वक्ता बने। मन स्रोता बने, पर होंदा कि ये जबान भी वक्ता बनती है, मन भी वक्ता बनता है। मन हर वक्त बोलता है, नहीं चुप करता, ये सुनता ही नहीं। मन की सुनन की आदत ही नहीं, कि जब सुनता ही नहीं तो शब्द मन का हिस्सा ही नहीं बनता। उखड़े उखड़े लोग अक्सर सत्संग दे च बैठे होंदे ने, उखड़ उखड़ के लोकी पाठ करते हैं। सुनना कठिन है। अगर कोई सुन लवे, महाराज कहते ने, दोहराते हैं, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। कबीर कहते ने, गुरु का शब्द मैं की सुनिया, गूंगा हो गया। मैं मिथ्या नहीं बोलता, कौड़ा नहीं बोलता, फिक्का नहीं बोलता, व्यर्थ नहीं बोलता। जबान तो गूंगा हो गया। जिन्नी पीड़ा हुई है तीर दे लगन नाल, मैं इनों भी बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। पर जितना रस आ रहा है, इस रस नूं भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। इक्को ही पीड़ा है। भगत चाहते ने बनी रहे, बनी रहे। बाकी हर पीड़ तो मनुख छुटकारा चाहता है। जरूर थोड़े विचों जिहड़े कोई अभ्यासी होणगे तो शब्द चोट कर गया होवेगा, ਉਹਦਾ एक अनुभव होंदा है, परमात्मा तो नहीं मिलता तो ना सही, अपनी प्यास बनी रहने दे, अपनी तड़प बनी रहने दे। ਉਹਦੀ ਇਹ उमंग पैदा हो जाती है, ਉਹਦੀ ਇਹ तड़प आती है। इनू एक सूफी अमीर खुसरो इंज बयान करता है, या रब दुआए वसल ना हर गिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। हे प्रभु, हे खुदा, हर वक्त मैनू तड़पण दे, दुआ करन दे, तेरे अगों मैं फरियाद करदा रवां, नहीं मिलता ना मिल। कम से कम मैनू फरियाद करन दे। इस फरियाद दे च भी रस है, इस फरियाद दे च भी आनंद है। जद कभी कोई गहराई नाल अरदास करता है, प्रार्थना करता है, यकीन जानो उस भी आनंद है, उस भी रस है। इक्को एक पीड़ा है जिहदे च महा रस है। कबीर कहते मैं गूंगा हो गया, नहीं बयान कर सकता। गूंगा हुआ बावरा, बावरे तो मुराद पागल इत्थे नहीं है, बावरे तो मुराद भोला, भोला हो गया। भोला मनुख अंदरों बाहरों एक होंदा है, ये मैं अर्ज करदा। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। जिन्हों बाबा फरीद इंज कहते हैं, जिन मन होर मुख होर, से कांडे कच्चिया। औरंगजेब भी 2 वक्त कुरान की तलावत करता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, जुमा रात नूं ज़कात देंदा है, रमज़ान के महीने रोज़े रखता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, तोरा मन नादानम के यजदा शनास। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं, तो खुदा शनास नहीं है, पखंडी है, झूठा है, फरेबी है। तेरा नमाज पढ़ना भी झूठ, तेरी कुरान की तलावत भी झूठ, तेरे रमज़ान के महीने च रखे रोज़े भी झूठ। तो रामन नादानम के यजदा शनास, बरामज़त ओ का रहा दिल खराश। तू वो कम कीते ने जिहदे नाल लोगां दे दिलां नूं खराश पहुंची है, तू लोगां दे दिलां नूं चोट पहुंचाई है। रब नाल जुड़िया होया मनुख लोगां दे दिलां नूं जोड़दा हुंदा है, तोड़दा नहीं हुंदा। तू ते कदम कदम दे उत्ते दिल तोड़े ने। तू पखंडी है, तू झूठा है, चलाक है, बाहरों कुछ होर पेश करदा है अपने आप नूं, अंदरों कुछ होर। हमू मर्द बायद शबद सुख नवर, न शिकमे दिगर दर्दा हाँ ने दिगर। असी उसनों ही मर्द मनदे हाँ, मनुख मनदे हाँ जो जबान दे च, वही दिल दे च।
जो दिल दे च है ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚ है। तेरी ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ कुछ ਹੋਰ है, तेरे दिल ਦੇ ਚ कुछ ਹੋਰ है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ, ये कच्चे ने। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर आउंदा है, अंदरों कुछ होर आउंदा है। हुण मैं अर्ज करा, चलाक मनुख हो सकता है संसार दे बड़ी सफलता प्राप्त कर लवे, लेकिन धर्म की दुनिया च पछड़ जाएगा। भोला मनुख धर्म की दुनिया च बहुत अगे लंघ जाएगा, हो सकता है संसार दे पछड़ जाए। ये भी मैं अर्ज करते हैं। भगत कबीर कहते हैं, चतराई ना चतर भुज पाई। चतराइयां नाल नहीं मिलना, चलाकियां नाल नहीं मिलना। चतराई न चतर भुज पाइए, रे जन मन माधो स्यों लाइए। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगर। उते भोले भा नाल मिलता। बावरा भोला, कबीर कहते हैं ऐसा शब्द का तीर लगे है, भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। ईरानी सूफी संत हाफिज कहता है, सद जां फिदाए आं के जबानश दिलश यकेस्त। हज़ारां जिंदड़ियां उस मनुख तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां जिहदी जबान ते दिल एक है। जो कहता है वही दिल दे च है, और जो दिल दे च है वही कहता है। जो बाहरों है वही अंदरों है, जो अंदरों है वही बाहरों है। हर मनुख दे दो दो रूप ने। ये बाहरों मनुख दिखाई दे रहे, अंदरों नहीं। इस वास्ते असी किसी कुत्ते को नहीं कहते भी यह कुत्ते तू कुत्ता बन जा, ए गऊ तू गऊ बन जा, ए शेर तू शेर बन जा, ए खोते तू खोता बन जा। ऐसा कहने की लोड़ नहीं, होते है नहीं खोते, पर रोज़ कहना पैंदा है बंदे तू बंदा बन जा, ए इंसान तू इंसान बन जा। क्यों? खोता खोते की तरह जी रहा है, शेर शेर की तरह जी रहा है, गऊ गऊ की तरह जी रही है, मनुख मनुख की तरह नहीं जी रहा। फिर किस तरह जी रहा है? करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। कबीर कहते हैं भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। कन्ना तो भी बहरा हो गया, हुण मैं व्यर्थ सुनदा भी नहीं, फिजूल दे बोल मैं सुनता ही नहीं, मैं गलत गल कन दे अंदर जान ही नहीं देता। देखो कोई साडे घर दे कचरा सुट जाए, गंदगी सुट जाए, असी कहांगे असभ्य मनुख उहदे नाल लड़ भी सकते हैं, पर जो कन्ना दे राही गंदियां गल्लां साडे विच सुट जाए, असी बड़े शौक नाल सुनी है नहीं। फिर ये सावधानी नहीं है। कबीर कहते मैं सावधान हो गया, मैं व्यर्थ दियां गल्लां सुनदा भी नहीं। गल खत्म। पाँव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान। इनू स्वामी रामानंद ने बसंत राग दे एक शब्द विच बड़े सोहणे ढंग नाल बयान किया, ध्यान नाल सुनना। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो पंग। मेरा मन पिंगला हो गया, पैर टुट गए ने, यदी भटकना मिट गई है। मेरा चित न चलत, नहीं चलता। पता है चंचल दे अर्थ की ने? चल 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 हर वक्त ही चलता है। तन बैठा है तां भी मन चलता ही रहता है, चंचल है। चल चल चलता है, चलता है, चलता है, रुकता ही नहीं, किधरे टिकता ही नहीं। स्वामी रामानंद दा बसंत राग दा शब्द कहते ने मन मेरा पिंगला हो गया। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो भंग। एक दिवस मन भई उमंग, घस चंदन चोआ बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। टिके होया मन सब कुछ समझ लैंदा है, भटकना जद मिट जाए। दो गल्लां धार्मिक जगत दे बिल्कुल गलत कहियां जांदियां ने, बई मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, गलत। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले कितों शुद्ध कर लोगे, किवें कर लोगे? फिर दूजी गल करते हैं मन नूं एकाग्र करके बाणी पढ़ो। यकीन जानो इन्हां नूं मन की समझ नहीं। इंज कहना चाहिए बाणी जपो ताकि मन एकाग्र हो। पहले कितों एकाग्र हो जाएगा?
जी मन नूं इकागर करके बाणी पढ़ो, बिल्कुल गलत। इन्हां लोकां नूं मन की समझ ही नहीं है। बाणी जपो ताकि मन एकाग्र होवे, मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, हद हो गई। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किवें शुद्ध हो जाएगा? बिना सत्संग तो किवें जो है शुद्ध हो जाएगा? बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल भरी जे जियो। इतने मैला हो जाएगा उल्टा। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, कबीर कहते ने पाँव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। ऐसा बाणी दा बाण लगे पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। इनू एक उर्दू दे माया नाज शायर ने इंज कह लो ठीका ही किया होगा। जरूर इन्हां भगतां दे ख्याल उसने सुने होने ने, या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्ज़ा गालिब कहंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। कहंदा जिहड़ा मेरा पैर टुट गया है ना, इस टुटे पैर का मेरे ते बड़ा एहसान है। मैं इसका एहसान मनदा जो मेरा पैर टुट गया। हद हो गई, पैर टुट गया तो टुटे पैर का एहसान शुकराना पिया करदा। अगे दसदा हो, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करा मैं बोल नहीं सकता, गूंगा, समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिस्मे ही भैया लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक सन तन रस आइए ज्यों चाक गूंगा मुस्कारे। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। हर दिल दे च रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये ओ गीत है, इनू हर साज ते नहीं गाया जा सकता। ये ओ राग है, ये ओ गीत है जिहदे वास्ते विशेष वाजा चाहिए, विशेष साज चाहिए है। भाव हर दिल दे च नगमा नहीं गूंजदा। पहले दिल की बनतर बनानी पैंदी है, सत्संग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा, उदास होने दे निराश होने दे तीन कारण ने। पहला, बड़ा गहरा सरोता होवे ते गुरु का शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नूं बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखते हैं, पर इक्को ही दिन महात्मा बुद्ध ने जिहदा नाम सिद्धार्थ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुर्दे असी भी देखते हैं, इक्को दिन एक लाश देखी, हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखते हैं, ज़ईफ ज़्यादा उम्र वाले 80-90 साल दे असी भी देखते हैं। उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखा है, सड़क क्रॉस कर रहा सी, लाठी दे आसरे थे, दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक, इनू कहते हिंदी संवेदना। ऐसे मनुख के अंदर संवेदना बहुत आती है, हर गल नूं छोटी दी छोटी घटना नूं भी बहुत वड्डे रूप दे महसूस करता है। संवेदना असी भी देखते हैं बुढ़िया, असी भी देखते हैं बीमारां, खुद भी बीमार होंदे हैं। असी भी मुर्दियां देखे होवेगा, इक्को ही दफा देख के चोट लग गई।
या तो अपनी अकल इतनी महान होवे मनुख अकल तो चोट खा जाए, तो अकल तो चोट खा के भी मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तीसरा, संसार तो कोई चोट लग जाए, बहुत वड्डा धनाढ़ सी दिवालिया हो गया है, बड़ी इज्जत मान मर्यादा से सरेआम बेइज्जती हो गई है, बड़ी पद प्रतिष्ठा से शक्ति से कुछ भी नहीं रहा। ऐसी हालत दे भी दिल चोट खा जाता है और निराश होके मनुख उदास हो जाता है। उदास होने दे, निराश होने दे तीन कारण ने। प्रथम, गुरु का शब्द चोट कर जाए, सत्संगी होवे, श्रोता होवे। दूसरा, अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा, संसार तो कोई दुख बहुत वड्डे रूप में चोट कर जाए। हुण मैं इसनों इस तरह बयान करा, जो अजे तक पूर्ण तौर पर निराश नहीं, उदास नहीं, ये कोई गहरा श्रोता नहीं कि इनू शब्द ने चोट की होवे। दूसरा, ये कोई इतना अकलमंद भी नहीं, गुस्ताखी माफ, कि इनू अपनी अकल ही चोट कर जाए। तीसरा, अजे संसार तो भी इसनों कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, नहीं तो मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। प्रथम, सत्संग दे आउंदियां आउंदियां एक दिन शब्द चोट कर गया, उदास हो गया, निराश हो गया। अकल तो चोट खा के उदास हो गया, निराश हो गया। अकल इतनी महान, संसार छोटा हो गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो ये संबंध मैं कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जैसे महाराज कहते ने, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नहीं माया। बहुत महान बारीक बेन मनुख नो सब तमाशा प्रतीत होता, खेल कुछ भी नहीं। कितने लहरां बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, संसार बन रहा है, मिट रहा है, मनुख जम रहे ने, मर रहे हैं, जीव जम रहे हैं, मर रहे हैं, तमाशा खेल। अकल महान होवे, मनुख छेती उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, अकल तो चोट खा के। इस संबंध भी मैं गालिब दी नज़म थोड़े सामने रखा। वो कहता है, बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की ये बच्चियां दा तमाशा, बच्चियां दे खिडौने और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तिफल बच्चे नूं कहंदे ने, इतफाल बच्चियां दी जमा बहुवचन। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है छोटे बच्चियां दा तमाशा, खिडौणियां दी खेड। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात ये बच्चियां दा तमाशा हो रहा है, सवेरे खा लिया, शामी खा लिया, फिर सौ गया, फिर दूजे दिन फिर वही कुछ किया है जो कुछ रोज़ करते हैं। सब कुछ रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन चल रही है, पुनरुक्ति चल रही है। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, तख्ते सुलेमानी सिंघासन जेदे लई दुनिया कितने पापड़ बेलदी है। कोई पिंड का चौधरी बनना चाहता है, कोई MLA बनना चाहता है, कोई MP बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना, कितने पापड़ लोग बेलते हैं। कहते बच्चियां दा तमाशा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग, औरंग तख्त नूं कहंदे ने, वड्डा तख्त उन्हों औरंग कहंदे ने, ए छोटा तख्त इनू मसनद कहंदे ने, मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 प्रचारकों को ये मसनद बख्शिश की सी, मंजियां बख्शिश कीतियां सन। पंजाबी च असीं उन्होंने मसंद कहते हैं, फारसी का लफ्ज़ है शुद्ध मसनद, यह मसनद है जिसते धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, इनू फारसी दे औरंग कहते हैं। वड्डा तख्त जिसते बादशाह बैठे औरंग, छोटा तख्त जिसते एहलकार बैठन मसनद।
शाहजहां दा लड़का मयोदीन प्यो नूं जेल दे च पा के ते 3 भरावां नूं मार के जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। नाम वैसे उसका मयोदीन सी। शायद आपको पता होवे, आदि काल तो कवि लोग, गुणी लोग, दार्शनिक, फिलोसफर, राजे महाराजे बादशाह अपना तखल्लुस रखते रहे। तखल्लुस का मतलब है खास नाम, हिंदी च कहते हैं उपनाम। कोई उपमा है, गुणात्मक नाम, कोई गुण ने तो गुणात्मक नाम रखे, तखल्लुस रखे। जैसे हुमायूं का लड़का जलालुद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया अकबर। अकबर का मतलब है सब तो वड्डा। ताई मुसलमान कहते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। पर जलालुद्दीन ने अपना लकब रखिया जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन ही सब तो वड्डा है। अकबर उसका तखल्लुस है। अकबर का लड़का शहजादा सलीम जो जोधा बाई की कुख तो पैदा हुई सी, ते जोधा बाई राजा मान सिंह वालीए जयपुर की भैन सी। ये राजपूत अपने धी भैणों के डोले मुगलों को देन लग पे सन, जिहदी अगांह चल के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुखालफत की। राजा मान सिंह की भैन जोधा बाई ये बेगम से अकबर दे, यदी कुख तो पैदा होया शाहजादा सलीम। वड्डा होकर जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, इन्हें अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का मतलब है सारा जहान मेरी पकड़ दे च, मेरी मुट्ठी च। जहांगीर इसने गुरु अर्जन देव जी ने शहीद किया। कल गुरुपुरब तुसीं मनाना है। इसने ही तरह तरह के तसैये ढाए। इसने ही बहुत वड्डा जुल्म किया। दोगला सी, जोधा बाई का लड़का सी, अकबर का लड़का सी। तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का लड़का शहजादा खुर्रम वक्त पाके जद सिंघासन ते बैठा है, तखत ते बैठा है, फिर इन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाहे जहां। शाहजहां सारी दुनिया का बादशाह, निरा हिंदुस्तान का नहीं। तो शाहजहां का लड़का मयोदीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, इन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंग कहते ने तखत नूं, वड्डा तखत। जेब कहते ने शिंगार नूं। औरंगजेब तखत का शिंगार, तखत की शोभा, तखत की मान मर्यादा, ये उसने अपना तखल्लुस रखिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जुर्रत जफरनामे दे राही लिखते हैं औरंगजेब नूं, न जेबन तुरा नाम औरंगजेब, के औरंगजेब न बायद फरेब। ऐ मयोदीन, ये नाम तेनू शोभा नहीं देता, तू औरंगजेब नहीं है। तेरे जैसा बंदा जब तख्त पर बैठता है, तख्त बदनाम हो जाता है, तख्त भ्रष्ट हो जाता है, तख्त मैला हो जाता है। तू औरंगजेब नहीं है। जुर्रत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तुरा तर्क ताजी ब मकरो रया, मरा चारा साजी ब सिदको सफा, न जेबत तुरा नाम औरंगजेब, के औरंगजेब न बायद फरेब। महाफरेबी है, तो झूठा है, चलाक है। हमू मर्द बायद शबद सुखनवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। तेरी जबान ते कुछ और है, तेरे दिल दे कुछ और है। तू तो मनुख ही नहीं है, तू तो इंसान ही नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ये जुर्रत उसनों जो है ऐसा आखे। औरंग वड्डा तख्त, छोटा उन्होंने मसनद कहते हैं। पंजाबी शब्द बन गया मसंद। जिन्होंने गुरु अमरदास जी महाराज ने मसनद बख्शी सी, मंजी बख्शी सी, तख्त बख्शिया सी, इन्हां दी पूजा प्रतिष्ठा इतनी हुई, संगत ने मान सन्मान इतना दिता, इन्हां कोल हजम ना होया। इन्होंने खुद गुरु होने का नारा लाया और भ्रष्ट हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अगाह चल के ये मसंद प्रथा खत्म करनी पई। हुण मसंद का तो मतलब है जिन्हों तख्त मिले है, लेकिन सिख जगत दे अज गाल बन गई। किसी को गाल कढ़नी हो तो कह दिता जाता है मसंद है, निरा ही मसंद है।
लेकिन मसन का मतलब है छोटा तख्त जिससे बैठे हैं। ये छोटा तख्त गुरु अमरदास जी महाराज ने तख्त प्रचारकों के लिए बनवाए सन, भी संगत उच्ची थां ते बैठ के गुरबाणी की व्याख्या करन, गुरबाणी सुनाण, ताकि संगतां नूं दिखाई देन ते संगत नूं ये देख सकन, संबोधन कर सकन, ते विचार का ज्ञान का गुरबाणी का सन्मान होवे, सत्कार होवे। ये गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रथा जो है चलाई सी। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, गालिब कहंदा एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक। ये औरंग ये बादशाह का तख्त बच्चों का तमाशा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। हज़रत ईसा दे मौजज़े कथावां ने कि हज़रत ईसा जिस बीमार दे सिर ते हथ रख देंदे सन वो तंदुरुस्त हो जाता सी। इतिहास है अंधे दे सिर ते हथ रखिया उन्होंने अखां मिल गईयां, और यह भी इतिहास है मुर्दे दे सिर ते हथ रखिया वो जिंदा हो गया। गालिब चोट करता है, मुर्दे दे सिर ते हथ रखिया जिंदा हो गया, तो क्या वो फिर नहीं मरिया? तो जे फिर मर गया तो हज़रत ईसा भी बच्चों के तमाशे करता रहिंदा। मैं ये नाल भी सहमत नहीं, कुछ भी नहीं। ये रिदियाँ सिद्धियाँ भी कुछ नहीं। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखां आओ, गुपत प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ। मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। इतनी वड्डी अकल है, ये रिद्धि सिद्धि तो भी प्रभावित नहीं। रिधियाँ सिद्धियाँ जिन्हां कोल कुछ भी नहीं, ना पीर साईं कोल, ना सैयद कोल, ना पंडित महाराज कोल, सिख धक्के पै खांदे उन्हां कोल। ये पंडित महाराज, ये पीर साईं, ये सैयद साहब 2 दिन ही साडे मसले हल कर देणगे। उंज गुरुद्वारे आणगे, कथा कीर्तन सुणनगे, मत्था टेकणगे गुरु ग्रंथ साहब जी नूं, उंज धागे तवीज़ां दे चक्रां च पए ने। तमाम पंजाबी दे अखबार भरे पे ने सारे। ये इंग्लिश के अखबारों च भी नहीं है, ये उर्दू के अखबारों च भी नहीं है। 3 अखबार उर्दू के इंग्लैंड के निकलते हैं। जंग निकलता है, नेशन निकलता है और सियासत निकलता है। मैं 3 च नहीं देखिया, ना ये पीर साईं देखे, ना ये सैयद साहब देखे, ना ये पंडित महाराज देखे। सब पंजाबी के अखबारों से छाए हुए हैं। क्यों? सब सिख जाते हैं, सब सिख जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना तो पखंड है, जाते उन्होंने कोल ने। मैं गुरु नानक देव जी के 2 बोल थोड़े सामने रखते हाँ, तो फिर अगे चलां तो समाप्ति करा समा हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज के बोल हमेशा चेते रखना। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है। ऐ मेरे भरा भाई करके संबोधन करते, मतां किधर तुसी समझो किसी होर दे हथ च भी कोई शक्ति है। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है। सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप। सब हर के वस है लाग सके न बिन हर के लाया। कुछ भी हरि तो बिना प्राप्त नहीं होता, ना वर ना सराप, ना सुख ना दुख। जो कुछ भी आंदा है कर्मा अनुसार सब परमात्मा तो आंदा है, किसी तो कुछ नहीं आंदा। सब झूठ है, सब पखंड है। पर मैं एक दफ़ा अर्ज कर दिया, एक तंदुरुस्त बंदे नूं भी 5-4 डॉक्टर कह देन तेनू ये रोग है, तेनू एक रोग है, उहदा मन ते पकड़ लेगा। ये धागे तवीज़ जादू टोने करने वाले पहले कहते ने तेनू कुछ है, आ गल है, तेरे नाल घटना घटनी है, फिर कहणगे आपां दूर करांगे। धंधा है। और जिन्ने चिर तक मनुख वहम तो माद के चक्कर च पिया होया है, समझ ज़्यादा नहीं है, वो इन्हां चक्करां च पेगा। गालिब कहंदा है ऐ ईसा, ये जो तू अंधे नूं अखां दे दित्तियां, बीमार नूं तंदुरुस्त कर दिता, मुर्दे नूं जिंदा कर दिता, मैं तेरी इस सिद्धि तो भी प्रभावित नहीं। यह भी बच्चों का तमाशा है, कुछ भी नहीं है। जिसनों तू जिंदा किया फिर नहीं मरिया, तो जे फिर मर गया तो बच्चों के तमाशे तू भी करता रहा, एवें खेडां खेडदा रहा बच्चों के खिडौणियां दे नाल। रिद्धि सिद्धि खिडौणा। अकल महान होवे, मनुख इन्हां चीज़ों तो प्रभावित नहीं होता। अकल चोट कर जाती है, मनुख सब कुछ तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। या फिर संसार चोट कर जाए,
बहुत वड्डी चोट कर जाए। बड़ा धनाढ़ सी, दिवालिया हो गए। बड़ा समर्थ सी, बड़ा कमज़ोर हो गए। बड़ी मान प्रतिष्ठा सी, बड़ी बेइज्जती हो गई, सरेआम पग ले गई। चोट खा के मनुख निराश हो सकता है, उदास हो सकता है। हुण ध्यान नाल सुनना, समाप्ति करा। निराश मनुख, उदास मनुख तीन तरह का फैसला कर सकता है। उदास ते निराश भी तीन कारणों करके होवेगा। शब्द चोट कर जाए, अपनी अकल चोट कर जाए, या संसार तो कोई चोट खा जाए। चोट खादा होया मनुख निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। निराश ते उदास फिर तीन तरह का फैसला करेगा। इनू अध्यात्मी पुरुष इंज कहते हैं, आत्म क्रांति, आत्म हत्या, आत्म विस्मृति। खुद नू बदलना, खुद नू खत्म करना, खुद नू भुलाना, इन्हां तिन्हां च एक काम जरूर करेगा। आत्म क्रांति, शब्द तो जिसने चोट खा दी है, आत्म क्रांति खुद नू बदलेगा। कहेगा, ऐ गुरु, अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण तेरे ढंग नाल जीवां। अज तक मैं अपने ढंग नाल खांदा पींदा रहा, हुण जो कुछ तू कहना मैं उस तरीके नाल चला। हुण मैं अपना रहन सहन, अपनी तर्जे जिंदगी, ऐ गुरु, तेरे मुताबिक करांगा जो तू कहना है। इनू कहते हैं आत्म क्रांति, खुद नू बदलना। आत्म हत्या, सुसाइड करना, खुद नू खत्म करना। निराश हो गया, बिल्कुल उदास हो गया, हो सकता है सुसाइड कर लवे। सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है। इस देश में सब तो ज़्यादा है। ये भी मैं अर्ज कर दें, आंकड़े जिहड़े मैं पढ़े ने, दिनवान एक मैगजीन है भारत दे च निकलदी है, मंथली। उहदे च आंकड़े पढ़ के मैं दंग रह गया। सब तो शक्ति संपन्न देश अमेरिका, पर बाकी मुल्कों के हिसाब नाल सब तो ज़्यादा सुसाइड करने वाले लोग इत्थे ने। खुदकशी इत्थे करते हैं, और सब तो ज़्यादा पागल भी इत्थे। गुस्ताखी माफ, क्षमा की याचना। आत्म क्रांति करेगा या आत्म हत्या करेगा या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नू भुलाण की कोशिश करेगा। दिन रात शराब के नशे च ही रहेगा, ड्रग्स खाएगा, अपने आप को भुलाएगा, चेते कुछ भी ना होवे। क्यों? चेते आएगा तो निराश है, उदास है। उदासी च किस तरह रवे? सब कुछ तो निराश है, किस तरह रवे? निराश होया मनुख, उदास होया मनुख, या तो आत्म क्रांति करेगा, खुद नू बदलेगा, या आत्म हत्या करेगा, खुद नू खत्म करेगा, या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नू भुलाएगा। शब्द तो जिसनों चोट लगी है सत्संग विच, ये आत्म हत्या नहीं करेगा, ये आत्म विस्मृति भी नहीं करेगा, ये आत्म क्रांति करेगा। ऐ गुरु, अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा। अज तक जिसने इस तरह का फैसला नहीं किया, शब्द ने अजे चोट नहीं की उसनों। ये भी मैं अर्ज करते हैं। उदास ते निराश अपनी अकल तो होया है या संसार तो चोट खा के होया है, तो सही फैसला करने की थां ते गलत फैसला भी कर सकता है। किसी किसी ने सही फैसला भी किया है, आत्म क्रांति में कल जिक्र करांगा, उन्हें खुद नू बदलिया है। लेकिन ऐसा भी होंदा है, खुद नू भुलाने की कोशिश करेगा, दिन रात नशे चूर, या सुसाइड करेगा, आत्म हत्या करेगा, खुदकशी करेगा। जिन्हें आत्म क्रांति की नहीं सोची, जिन्हें आत्म हत्या की नहीं सोची, जिन्हें आत्म विस्मृति की नहीं सोची, अजे इसनों चोट नहीं लगी, अजे ना निराश होया है ना उदास होया है। बाकी का खुलासा मैं थोड़े सामने कल करांगा, समय की उलंघना ना करा।